Hello students, today I am going to start third lecture for the chapter haloalkanes and haloarenes. In this lecture, we will study about physical properties and some of the chemical properties of haloalkanes. Now before starting physical and chemical properties of haloalkanes, first of all I want to discuss about optical isomerism because there is use of this isomerism during study of chemical properties of haloalkanes. Now, what is optical isomerism? There are two types of isomerism, structural and stereoisomerism. You learnt about structural isomerism in class 11th when two or more compounds having same molecular formula but different structures are called structural isomerism, structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism. Now, what is stereoisomerism? Stereoisomerism means molecular formula same, structure also same, but the special arrangement of atom in space is different. Special arrangement is different means space में atom का arrangement different होता है. Now optical isomerism is a type of stereoisomerism. Now what is optical isomerism? Optical isomer means they have same molecular formula, same structure, but their behavior towards plane polarized light different. Plane polarized light means the light which vibrates only in one plane. One of the isomer rotate the plane of polarized light in clockwise direction and this form is called D form, dextrorotatory form or plus form. Another isomer rotate the plane of polarized light in anticlockwise direction and it is called LIVO form, minus form or L form. So these are two forms of optical isomers and optical isomers are also known as enantiomers. Optical isomers को enantiomers भी कहा जाता है. When D and L form are mixed in equal quantity, the resulting form becomes optically inactive and this form is called racemic form or racemic mixture. इसको DL form और plus minus form भी कहा जाता है. And the process of conversion of optically active form into optically inactive racemic form is called racemization. इस process को racemization कहा जाता है. Now, what is the necessary condition for an organic compound to show optical isomerism? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? नाउ टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल विच हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट ऑन फ्रॉम एनी प्लेन इज कॉल्ड अ कायरल मॉलिक्यूल. उसको अकायरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. इस फिगर पे आपको नीचे पे बॉटम पे दो फिगर्स दिख रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. यदि हम इसको एक प्लेन से कट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इज़ एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ राइट हैंड साइड. इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है. इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये मॉलिक्यूल अकायरल है. जबकि राइट हैंड साइड पे जो फिगर बनाया हुआ है उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इस पर आप किसी भी प्लेन से इसको कट करें तो इसके दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे. तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें विच हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड अ कायरल मॉलिक्यूल. उसको कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है. तो एक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए उसको कायरल होना मस्ट है. नाउ हाउ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कायरल. एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड कायरल कैसे हो सकता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कायरल होने के लिए उसमें कम से कम एक ऐसा कार्बन एटम होना चाहिए जिसकी ऑल द फोर वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होना चाहिए. मीन्स उस होल मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा कार्बन एटम है जिसके फोर बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड है तो उस एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं. उसी को कायरल सेंटर कहते हैं और वो मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है. और कायरल हो जाता है मीन्स उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. ऐसे मॉलिक्यूल जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं. इस फिगर में आपको एक कायरल मॉलिक्यूल शो किया गया है जिसमें जो ब्लैक सर्कल है वो कार्बन को शो कर रहा है. उससे 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं जिसको ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है. मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज कायरल. जब इसका मिरर इमेज इस मॉलिक्यूल को ए से रिप्रेजेंट किया है, जब इसका मिरर इमेज बन रहा है जिसको बी से शो किया है तो ये मिरर इमेज जो है ए जो है बी पर सुपर इम्पोज नहीं होगा. मीन्स कायरल मॉलिक्यूल्स आर
नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, जबकि जो अकार्यल मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं. तो व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, I hope clear to all of you. Now the next topic of this lecture is physical properties of haloalkenes. Now first physical property of haloalkenes, boiling point. The boiling point of haloalkanes increases as the size of halogen atom increases. It means if we compare the fluoro, chloro, bromo and iodoalkane, the boiling point of the same alkane means fluoromethane, chloromethane, bromomethane and iodomethane. Then the boiling point of iodomethane will be highest and the boiling point of fluoromethane will be least. Means as the size of halogen atom increases, boiling point increases. Now second point, the boiling point of haloalkanes increases as the size of carbon chain increases. Means if we compare chloromethane, chloroethane, then chloropropane, the boiling point of chloropropane will be highest. It is given in third point. CS3, CS2, CS2, यहाँ पर हैलोजन की प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसी पे X भी अटैच्ड होगा. मीन्स CS3, CS2, CS2X का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. देन हेलो इथेन का कम है और हेलो मीथेन का सबसे कम है. मैंने आपको क्लोरो से एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर X लगाया. X में भी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी हो सकता है. मीन्स सेम हैलोजन के हैलो एल्केन जिसमें कार्बन एटम का नंबर डिफरेंट है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट, इन द आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स as the branching increases boiling point decreases because of decrease in surface area. आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स में यदि मोलर मास सेम है लेकिन ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने के कारण इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. यहाँ जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में, पहला है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंड है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और थर्ड है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो टर्शरी में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है. आइसो में उसके कंपैरेटिवली कम ब्रांचिंग है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में स्ट्रेट चेन है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोएल्केन्स डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस. जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है. बिकॉज आयोडीन इज बिगेस्ट इन साइज, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकेस्ट and fluorine is smallest amongst halogen, therefore carbon fluorine bond is strongest. Means bond strength यदि हम कंपेयर करें मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिथाइल फ्लोराइड में हाईएस्ट होगी और मिथाइल आयोडाइड में लिस्ट होगी. नाउ डायपोल मोमेंट इज अ यूनिट टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल. डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इसलिए जो फ्लोरो एल्केन होता है उसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड जो आयोडो एल्केन होता है उसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होता है. नाउ हैलो एल्केन्स, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. हैलो एल्केन्स दो पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. हैलो एल्केन्स पोलर होते हैं बट इतने पोलर नहीं होते हैं कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करें, इसलिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोएल्केन इन वाटर इज वेरी लेस. मीन्स दे आर ऑलमोस्ट insoluble in water. Now density of haloalkanes increases as the size of halogen atom increases. Means density of fluoroalkane is least and density of iodoalkane is highest. Now next topic of this lecture is chemical properties of haloalkanes. Now the first topic under this, nucleophilic substitution reactions. Now what are nucleophiles? Nucleophiles electron rich species. Haloalkanes have carbon halogen bond. When the halogen atom of haloalkanes replaced by some nucleophiles, such type of reactions are called nucleophilic substitution reactions, SN reactions. Now there are some example of nucleophilic reactions. Haloalkanes on reaction with alcoholic aqueous solution of KOH gives alcohol. Aqueous solution of KOH, not alcoholic.
halogen atom replaced by OH group and alcohols are formed. This is one example of nucleophilic substitution reaction because OH group is a nucleophile. In second example, haloalkanes on reaction with ammonia gives amines. जब एक हेलोजन एटम अमाइन ग्रुप से रिप्लेस होगा NH2 ग्रुप से तो प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा. बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ हेलोएल्केन देन फर्दर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस. देन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म होते हैं. इस रिएक्शन को हाफमैन अमोनोलिसिस कहते हैं. मीन्स हेलोजन एटम का NH2 ग्रुप से रिप्लेस होना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. देन थर्ड पॉइंट, हेलोएल्केन्स ऑन रिएक्शन विथ पोटेशियम और सोडियम साइनाइड KCN या इसकी प्लेस में NaCN भी हो सकता है. द हेलोजन एटम रिप्लेस बाय CN ग्रुप, साइनो ग्रुप एंड द साइनोएल्केन्स विच आर नोन एज एल्केन नाइट्राइल आर फॉर्म्ड. एल्केन नाइट्राइल फॉर्म होते हैं. यहाँ पर KCN के साथ जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, KCN का आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए ये आयोनाइज होकर K+ और CN- बनाएगा, इसलिए हेलोजन एटम CN- से रिप्लेस होगा. लेकिन जब हेलोएल्केन्स की रिएक्शन AgCN से करेंगे तो C2H5NC बनेगा. यहाँ पर पर्टिकुलर C2H5 है इसलिए मैं C2H5 कह रही हूँ. मीन्स हेलोजन एटम NC ग्रुप से रिप्लेस होगा बिकॉज सिल्वर साइनाइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड एंड अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड. इसलिए इसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा. देन हेलोएल्केन्स ऑन रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट गिव्स एल्काइल नाइट्राइट्स ONO. क्योंकि यदि आप पोटेशियम नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होता है KONO और जो वो आयोनाइज होता है तो K+ और ONO- फॉर्म करता है. इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो RONO मीन्स एल्काइल ग्रुप के साथ ONO ग्रुप आता है. लेकिन जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होती है हेलोएल्केन्स की तो नाइट्रोएल्केन्स फॉर्म होते हैं क्योंकि सिल्वर नाइट्राइट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है और नाइट्रोजन की साइड से अटैक करता है और RNO2 फॉर्म होता है. Now next, हेलोएल्केन्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड. एल्कोहल्स ROH होते हैं. जब एल्कोहल के हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस किया जाता है तो उनको सोडियम एल्कोक्साइड कहा जाता है. के साथ रिएक्ट करते हैं तो ईथर्स फॉर्म करते हैं. इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज हेलोजन एटम रिप्लेस बाय एल्कोक्सी ग्रुप. देन हेलोएल्केन्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइट. एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज. इसका जब सोडियम एसिटिलाइट मीन्स 1 हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो हायर एल्काइंस फॉर्म होता है. इस रिएक्शन का यूज़ एसिटिलीन से हायर एल्काइंस बनाने में किया जाता है. देन लास्ट, हेलोएल्केन्स ऑन रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड गिव्स एस्टर्स. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम RCOO कार्बोक्सिलेट आयन से रिप्लेस होता है और एस्टर्स फॉर्म होते हैं. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देन यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है इस स्लाइड पे बताया गया है कि KCN आयनिक कंपाउंड है इसलिए CN हेलोजन को रिप्लेस करेगा और AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए NC नाइट्रोजन के साइड से अटैक होगा और एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा. सिमिलरली KNO2 आयनिक कंपाउंड है इसलिए प्रोडक्ट RONO बनेगा और AgNO2 कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए प्रोडक्ट नाइट्रोएल्केन बनेगा. Now nucleophilic substitution takes place by two mechanisms, SN1 and SN2. Now what is SN1 type of reaction? In SN1 type of reaction, rate depends on the concentration of only haloalkanes, means it is a first order reaction. आप लोगों ने काइनेटिक चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ओनली फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करती है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. मीन्स SN1 जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. रिएक्शन की रेट ओनली हेलोएल्केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. इस टाइप के मैकेनिज्म में पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है और कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है. देन कार्बोकेटायन जो प्रोड्यूस होता है उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो इस टाइप के मैकेनिज्म पे जिस साइड से जिस प्लेस से हेलोजन लीव करता है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है. इसलिए प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के सेम होता है. मीन्स SN1 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज़ है. यदि आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और यदि आपका रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट भी लीवो रोटेटरी होगा. मीन्स क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है.
SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलो एल्केन्स प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी होता है। इसका रीज़न ये है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन से सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म तब प्रेफर होता है जब रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में होती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट कार्बन हैलोजन बॉन्ड को वीकन कर देते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन लो होता है या वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म से होता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 होती है। इसको बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन की रेट होती है वो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज हैलो एल्केन्स दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मीन्स इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल हैलोजन बेरिंग कार्बन को अटैक करके इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और इमीजिएटली एज सुन एज द न्यूक्लियोफाइल अटैच विद द कार्बन द हैलोजन लीव फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। हैलोजन जो होता है उस मॉलिक्यूल से छूट जाता है। नॉन न्यूक्लियोफाइल जो होता है हैलोजन एटम के बैक साइड से अटैक करता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से जस्ट अपोजिट हो जाता है। मीन्स इफ द रिएक्टेंट इज डेक्स्ट्रोफॉर्म द प्रोडक्ट विल बी लीवोफॉर्म। सिमिलरली if the reactant is levoform then product will be dextroform, means vice versa, opposite हो जाता है। it means the SN2 substitution takes place by inversion of configuration which is known as Walden inversion. inversion of configuration से होता है जिसको Walden inversion कहा जाता है। इस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है। प्राइमरी इज मोस्ट रिएक्टिव एंड टर्शरी इज द लीस्ट रिएक्टिव। इसका रीज़न ये है कि प्राइमरी में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिकॉज ऑफ लेस स्टैरिक हिंड्रेंस सबसे इजी होता है और टर्शरी में स्टैरिक हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक हैलोजन बेरिंग कार्बन पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है। प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और टर्शरी की सबसे कम होती है। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया है कि किस न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ईजी होगा। एंड SN2 मैकेनिज्म जो मेनली होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट न्यूक्लियोफाइल्स में और हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पे फेवर होती है। मीन्स जब नॉन पोलर सॉल्वेंट पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो SN2 मैकेनिज्म से होता है। नाउ रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सम एल्काइल हैलाइड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि SN1 मैकेनिज्म में प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी होता है और SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अलॉन्ग विद दिस बेंजाइलिक और एलाइलिक को भी इंक्लूड किया है SN1 और SN2 पे, ये आप इसमें देख सकते हैं। उसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक में रेजोनेंस होने के कारण उनके कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बीच में वो भी इंक्लूडेड हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यूज़ होती है, तो आप इसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। एक और फैक्टर है जो हैलो एल्कीन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे जो यूज़ होती है वो है साइज ऑफ हैलोजन एटम। इन केस ऑफ आयोडो एल्केन the order of reactivity is highest because carbon iodine bond is weakest because of bigger size of iodine. and fluoroalkanes में यदि हम सेम हैलोजन के फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव का कंपैरिजन करें तो आयोडो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है और फ्लोरोएल्किन में सबसे लिस्ट रेडिली होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। दैट्स ऑल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन completed. Now few chemical properties of haloalkane left which we will discuss in next lecture.